خدا کے جلالی اور عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا کلمہ تیسرا کلمہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ محبت کا ہے، ذمہ داری کا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا 19 باب اس کی 26 آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس کلمے کو ہم اگر دیکھیں تو اس کلمے میں مکمل محبت نظر آتی ہے، خدا کی محبت جو اپنی ماں کے لیے ہے، جو صلیب پر بھی نہیں بھولا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس صلیب پر اس کے ساتھ کیا حال ہوا۔ اس نے کتنی زیادہ جسمانی تکلیف برداشت کی، کتنی زیادہ دکھ کی کرب کی حالت میں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کو نہیں بھولا۔ اس نے صلیب پر بھی اپنی ماں کی فکر کی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی فکر تھی کہ جب وہ صلیب پر اپنا فدیہ دے دے گا جو ہمارے لیے تھا، ہمارے گناہوں کے لیے تھا، تو اسے اپنی ماں کی فکر تھی کہ میرے بعد میری ماں کی حفاظت کون کرے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم جب یہ 7 کلمے پڑھتے ہیں، 7 کلموں کا مقصد ہے ہماری زندگی میں، ہم ہر سال آتے ہیں اور ان کلموں کو سن کر گھر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہر کلمے کے اندر ایک ڈیپلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے ایک نصیحت چھپی ہے۔ اس کلمے کے اندر یہ نصیحت ہے کہ محبت، ہمارے اندر محبت ہے یا نہیں، کیونکہ خدا نے صلیب پر اپنی جان دے کر اپنی محبت کو ظاہر کر دیا کہ وہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کس میں ہے؟ ہمارے خدا یسوع مسیح میں۔ جب ہم اس کے کلام پر اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا، ہمیں خلاصی دی، ہمارے لیے نجات کا کام پورا کر دیا۔ صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تو بغیر کسی گناہ کے، کسی بھی گناہ کے ہمارے لیے اتنی تکلیف برداشت کی۔ ایک کم 40 کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنایا تھا، ہاتھوں اور پاؤں میں 6 انچ لمبے کیل ٹھکوائے اس نے ہمارے لیے۔ 136 کلو گرام کی وزنی صلیب اٹھا کر آج ہم جب چلتے ہیں ہمارے ہاتھ میں 5 کلو کا تھیلا ہی ہو تو ہم گھر پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، لیکن اس نے 136 کلو گرام کی وزنی صلیب اٹھائی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے۔ راستے میں 3 بار گرا لیکن پھر اٹھا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ پیاسا رہا، پسلی میں ریزہ کھایا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کیونکہ اسے ہمارے ساتھ کیا تھی؟ محبت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل محبت کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو یوحنا کی پہلا یوحنا 4 باب اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے اس کی 7 آیت نکال لیا ہے تو پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ پہلا یوحنا 4 کی 7 میں لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ محبت جو خدا سے پیدا ہوا ہے، ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو، ہمارے اندر کتنی محبت ہے۔ ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن ہماری محبتیں ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اگر صلیب پر دیکھیں خدا یسوع مسیح کو، اس نے محبت کا ایک نمونہ دیا، ذمہ داری کا ایک نمونہ دیا۔ اس نے صلیب پر اپنی ماں کی اسے اس قدر فکر تھی کہ اس نے اپنے شاگرد کو اپنی ماں کو سونپ دیا۔ وہ شاگرد تھا یوحنا، جس کو اس
उसने अपनी माँ को सौंपा, क्योंकि यूहन्ना से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब सलीब पर उसको लटकाया गया तो आप सब देखते हैं कि सारे शागिर्द जो थे वो डर के मारे भाग गए। उनकी मोहब्बतें, जिम्मेदारियां ठंडी पड़ गई, लेकिन एक यूहन्ना था जो सलीब के पास रहा और देखता रहा, और खुदा ने यूहन्ना पर ही अपनी माँ की जिम्मेदारी लगा दी, उसी को अपनी माँ को सौंप दिया। और वो यूहन्ना को जब खुदा ने कहा कि ये तेरी माँ है, उसी वक्त यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। उसे सलीब पर फिक्र थी। उस वक्त हम देखते हैं कि अगर बाकी शागिर्द जो हैं उनको अपनी जान का खतरा था कि अगर हम उन्हें खुदा का या खुदा के पास गए तो उसका इकरार किया तो हमारी जान जा सकती है, लेकिन यूहन्ना को कोई फिक्र ना था, क्योंकि वो खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। अगर हम मोहब्बत को देखें तो ये 4 लफ्जों का मजमूआ है। 4 लफ्जों से मिलकर मोहब्बत एक लफ्ज बनता है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी छुपी हुई है। मीन से मैन, हे से हलीम, बे से बहुत। अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। और ते से तेरे लिए, खुदा ने हमारे लिए नजात का काम पूरा किया, क्योंकि सलीब पर खुदा ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारी को निभाया कि आप देखते हैं कि उसने अपनी माँ को, यूहन्ना को जब सौंपा, तो आप देखते हैं कि आज अपनी जिंदगी में अगर जब हम जाएं तो अपनी जिंदगी में हम अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि इन कलमों का हमारी जिंदगियों के लिए मकसद था। जब साल के साल ये कलमे हम सुनते हैं तो ये हमारी जिंदगी को कलमे सुधारते हैं। इनका सलीब पर बयान करना एक मकसद था, ताकि हम सब बच जाएं। हम सब उस दिन को जब वो खुदावंद यीशु दुनिया पर आए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हम करंथियों की किताब में देखते हैं, करंथियों 13 बाब, उसमें मोहब्बत की इतनी ज़्यादा तारीफ की गई है कि मोहब्बत के बारे में कहा गया है कि मोहब्बत साबर है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत चीखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, झुनझुनाती नहीं, बदगुमानी से खुश नहीं होती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत हो, खुदा ने सलीब पर सब कुछ सह कर हमारे लिए नजात का काम पूरा किया, ताकि हम मखलसी पाएं, छुटकारा पाएं। और मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 18 आयत। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, कि कोई खौफ से आजाद होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। आप सलीब पर देखते हैं कि खुदा के साथ यूहन्ना की मोहब्बत, उसने अगर इंसान के अंदर मोहब्बत हो तो इंसान कहता है कि मैं इसके लिए ये काम कर जाऊंगा, क्योंकि वो डरता नहीं। कामिल मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है और सब बातों का यकीन रखती है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 20 आयत में अगर देखें तो इसमें हमें एक हुक्म भी मिलता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। ये पेशन गोई की गई थी पहले खरूज में भी, क्योंकि खुदा ने हमें चौथा हुक्म दिया है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना है। हमें सलीब पर हमारा बाप अपनी माँ की इज्जत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब यूहन्ना को उसने ये जिम्मेदारी का कलमा है, जब ये जिम्मेदारी सौंपी तो उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी मुकद्दसा माँ मरियम को अपने घर ले गया। तीसरे कलमे में ये पेशन गोई भी पूरी होती नजर आ रही है। आप देखते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी 16 आयत में ये पेशन गोई भी पूरी होती हमें नजर आ रही है। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश 3 बाब उसकी 16 आयत। फिर उसने औरत से कहा क्या मैं तेरे दर्दे हमल को बढ़ाऊंगा। सॉरी, ये आयत नहीं थी, 15 आयत है।
और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर ए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये पेशन गोई भी पूरी हुई कि जब खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि ए औरत का लफ्ज़ आप जानते हैं कि इस कलमे के शुरू में इस्तेमाल किया गया। यीशु ने अपनी माँ से और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। यहाँ पर पैदाइश की किताब में ये पेशन गोई भी पूरी होती हमें नजर आ रही है। आज का हासिल कलाम ये है, हम पिछले कलमों में देखते हैं जो पीछे 3 कलमे बयान किए गए, उनमें भी कोई ना कोई मकसद था, क्योंकि खुदा ने अपनी जान देकर हमें सलीब पर बचा लिया। आज हमारे लिए इस कलमे में हमें ये सबक हासिल होता है, क्या हम एक दूसरे का वजन उठाते हैं। खुदा ने सलीब पर हम सबका वजन उठाकर अपनी जान देकर हमें अपने खून से खरीद लिया। और खुदा यीशु मसीह के इस कलमे में अपनी माँ से प्यार जो उसके दिल में था वो उसके होठों से निकलता हुआ हमें नजर आता है कि उसने पूरी जिम्मेदारी यूहन्ना पर डाल दी, ताकि वो उसे फिक्र था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो हमारे लिए हासिल कलाम यही है कि खुदा ने तो निजात का काम पूरा कर दिया सलीब पर। खुदा ने तो हमारे लिए निजात का काम पूरा किया है। आज हमारी जिंदगियों में ये कलमे कितने असर रखते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों से इन कलमों से क्या सबक हासिल करते हैं। तो हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से अगर निभाएं तो हम खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। इस कलमे में खुदा ने अपनी माँ से वो से कितना प्यार था, उसे ज़रा भी लापरवाही नहीं की कि हमें अपनी माँ को हमें अपनी जिंदगियों में देखना है कि हमें अपनी माँओं के साथ अपना कैसा रवैया रखना है। आखिर में मैं एक शेर के साथ इस कलमे को ख़त्म करूँगी। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है।